Hello students, in this lecture we will discuss multiple access technique. This technique is basically used where number of channels are less as compared with the number of users. So our aim is to give accessibility to every users. That's why we can accommodate maximum users in a particular number of particular set of channels. कैसे? अगर हमारे पास चैनल एक है, उस चैनल से हम बहुत सारे यूज़र्स को हम अलाउ कर सकते हैं कि दे विल कम्युनिकेट। ओके, क्योंकि जो है चैनल वायर्ड हो, वायरलेस हो, उसकी जो पेमेंट है वो एक्सपेंसिव है। ओके, तो अब हम ऐसा तो नहीं है कि हमारे यूज़र्स जो हैं, यूज़र्स तो बढ़ते जाएंगे, आवर यूज़र इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट limited channels, we have limited channels, so that's why we are using these multiple access techniques. For that we have 5 techniques: frequency division multiplexing, time division multiplexing, code division multiplexing, orthogonal frequency division multiplexing, spectral division multiplexing. First, FDMA. In this process, in this access technique, we can divide our channel bandwidth into number of small individual bands, and we can allocate that particular individual band to that small band to users to talk. Okay, like this. If we have this set of frequency, we can divide this set of overall frequency into small frequency bands, and like this, if this give to user 1, this will give to user 2, so on. Okay, this type of technique is basically used in cable television system, which in which medium is coaxial cable. Coaxial cable has a useful bandwidth for about 4 megahertz to 1 gigahertz. The bandwidth is divided into 6 megahertz wide channels. एक एक जो बैंड है वो 6 megahertz का होगा. This FDMA is also used in fiber optical communication. In that case, it is known as WDMA, wavelength division multiplexing. क्यों? ऑप्टिकल फाइबर में आपको मालूम है कि जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होती है, जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम ट्रांससेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड. सो इन दैट केस फ्रिक्वेंसी का जो इफेक्ट है वो हम इतना नहीं मानते जितना कि वेवलेंथ ऑफ लाइट का. दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इज नोन एज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. Okay, now second is TDMA. In this we can accommodate number of users to different slots. Suppose I have a different particular bandwidth of frequency, then we will give two time slots, 2 seconds या 2 minutes for for one user, next 2 minutes for 2 users. मतलब सिंगल बैंड जो है, वो सिंगल जो फ्रिक्वेंसी चैनल है वो हम डिफरेंट टाइम्स पर दूसरे यूज़र्स को हम दे सकते हैं. दिस टाइप एक पहला सिस्टम था जो दैट इज़ T1 ट्रांसमिशन सिस्टम, विच हैज़ बीन यूज फॉर ईयर्स इन टेलीकॉम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता था. उसमें 24 इंडिविजुअल वॉइस टेलीफोन कॉल्स एकोमोडेट हो सकती थी सिंगल चैनल में. लाइक दिस, number of users, one time slot, second time slot, third time slot, this one time slot given to one user, and this second to user, 3 users. ठीक है, और जब एक यूज़र बात ख़त्म कर देता है लाइक दिस, इफ़ अगर यूज़र 1 हैज़ फिनिश्ड हिज टॉक, देन दिस चैनल विल allocate to next users. ओके, GSM भी इसी चीज़ का यूज़ करती थी. GSM में भी TDMA का यूज़ किया जाता था. उसमें क्या था, बेसिकली स्पेक्ट्रम जो था 200 किलो हर्ट्ज बैंड का था. दैट यूजेस टाइम डिवीजन टेक्निक टू पुट 8 वॉइस कॉल्स इनटू 1 चैनल. हम एक चैनल में 8 जो वॉइस कॉल्स है वो अकोमोडेट कर सकते थे. उसके लिए करते कैसे थे, टोटल टाइम स्लॉट था हमारे पास 4.615 मिली सेकेंड्स, तो हम हर एक यूज़र को देते थे 0.577 मिली सेकेंड्स, एंड जिसमें 156 बिट्स पर यूज़र यूज़ की जा सकती थी. नेक्स्ट इज कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. इट इज़ बेसिकली a digital technique in which known as technique known as spread spectrum technique. It is basically used where there is where privacy is our concern. मतलब
कि नो वन विल इंटरफेयर इन आवर टॉक, नो वन विल इंटरसेप्ट। मतलब जिस यूज़र से बात करना चाहते हैं, सपोज आई वांट टू टॉक विद यूज़र 2, then with the help of code division multiplexing, users 3rd, user 4 and any other user won't interfere in our communication because of this CDMA technology. That means this CDMA is more secure as compared to others. Okay, in this simple block diagram, इसमें एक XOR है, डिजिटल वॉइस सिग्नल है, उसको हम कोड जनरेट, एक कोई कोड होगा जिसको हम PN सीक्वेंस कोड बोलते हैं। डिजिटल जो वॉइस सिग्नल है इसकी बिट रेट कम है, और जो हम हमारा PN सीक्वेंस होगा इसका बिट रेट दिस इज 1.288 मेगाबिट पर सेकेंड। मतलब हम स्मॉल कंप्रेस सिग्नल को हम भेज सकते हैं विद टू हायर बैंडविड्थ वाले सिग्नल पे with the help of PN sequence. Then after that we can modulate with carrier so that it will reach to other destination. Okay, अब जो PN sequence है उसका हायर फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, दैट्स वाई इट इज नोन एज चिपिंग सिग्नल। रिजल्ट इज दैट डिजिटल वॉइस इज स्प्रेड। मतलब अब ये भी है वाइस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक, स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक, बिकॉज क्योंकि जो हमारा लो बैंडविड्थ वाला सिग्नल था वो अब स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि उसको हम किसके साथ एक्सॉर करवा रहे हैं, विद कोड जनरेटर PN सीक्वेंस के साथ। और जो PN सीक्वेंस है दैट इज हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। ओके, तो जैसे 3G सिग्नल जो आपका WCDM है, वाइड CDMA कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वो भी इस तरह का ही टेक्निक का यूज़ करता था। उसमें जो आपका चिपिंग सिग्नल है, एक तो वॉइस सिग्नल होगा जो कंप्रेस्ड होगा, और चिपिंग सिग्नल है जिसकी मेगाबिट 3.84 मेगाबिट पर सेकेंड थी। ठीक है, और 5 मेगाहर्ट्ज चैनल पे हम इसको अकोमोडेट करते थे। नेक्स्ट इज OFDMA। OFDMA बेसिकली यूज इन लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन सेलुलर सिस्टम LTE नेटवर्क, जो कि जनरली हमारा यूज़ हो रहा है अब 4G में। ओके, इट डिवाइड चैनल इनटू मल्टीपल नैरो और ऑर्थोगोनल बैंड्स। मतलब जो हमारा पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी चैनल है उसको हम स्मॉल बैंड्स में हम डिवाइड करते हैं, एंड ये स्मॉल बैंड्स हम इस तरह स्पेस करेंगे, इसके गैप रखेंगे, दैट्स वाई कि वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप, दे डोंट इंटरफेयर विद वन अनदर। ईच बैंड इज डिवाइडेड इनटू हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ 5-10 मेगाहर्ट्ज वाइड सब कैरियर्स। और जो स्मॉल बैंड्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, सब कैरियर्स। डाटा टू बी ट्रांसमिटेड डिवाइडेड टू मैनी लोअर स्पीड बिट स्ट्रीम्स। मतलब एक डाटा है, अगर सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, एक डाटा है उसको हम स्मॉल लोअर स्पीड बिट स्ट्रीम में डिवाइड करेंगे, देन उसको मॉड्यूलेट करेंगे उस फ्रिक्वेंसी से जिस पे हम उसको वर्क करवाना चाहते हैं। ओके, दिस टेक्निक इज़ वेरी स्पेक्ट्रल एफिशिएंट। इसमें स्पेक्ट्रम बड़ा हमारा उसमें सेव होता है। ओके, लेस अफेक्टेड बाय मल्टीपाथ प्रोपोगेशन का इफेक्ट इसमें बहुत कम है। Data is assembled into time slots. They are then separated by some of subcarriers. SDMA, single channel may be used for simultaneously if the users are split. मतलब एक ही चैनल को हम different users को दे सकते हैं, but at the same time we have to keep it in one mind. We have to keep it one step in our mind, that is frequency reuse, which you had already studied in earlier topics units. ठीक है, क्या होता है फ्रिक्वेंसी रीयूज, जिसमें हम सेम सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी को एक आफ्टर सम पर्टिकुलर डिस्टेंस वी कैन यूज अनदर एट अनदर प्लेस। ओके, उसमें हम डायरेक्शन एंटीना यूज इसलिए करते थे ताकि इंटरफेरेंस कम हो, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, ये वाइडली यूज किया जाता है सैटेलाइट सिस्टम के केस में। ओके, थैंक यू।